Thank you so much, Hira, for joining the session. You're most welcome. Thank you for arranging this, Umair. Hira, I'm pretty much sure a lot of us and industry में आपको काफी लोग जानते हैं, but just for the audience, can you just tell about yourself? So I'm a film graduate from NCA back from 2013, and that's when my journey of film production started. About 6 years back, roughly around like 2019, is when I ventured into the digital marketing space and launched my agency by the name of Social Byte. And that's how the journey has been so far. परफेक्ट। जर्नी की आपने अभी बात बताई, और हर इंसान की जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होती है ग्रोथ। ग्रोथ बहुत मैटर करती है हर बंदे के ओवरऑल लाइफ के लिए। अब उसमें पर्सनल ग्रोथ भी होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है, जैसे कि आपने अभी खुद बताया। यू स्टार्टेड फ्रॉम समथिंग, नाउ माशाल्लाह से यू आर अ को फाउंडर ऑफ द सोशल बाइट एंड यू आर लाइक प्रोड्यूसिंग कंटेंट। सो हाउ वाज योर जर्नी एंड what what I want to ask, like, what is growth for you? To be very honest, not in generally, personally, but what is growth for you? So again, growth is in current, like in today's day and age, growth may be different for every individual, but particularly for myself, it's just that whatever you have learned through the years, every year on year, and with every experience, you are becoming a better version of yourself. And again, it ties in differently for every individual, but just that every experience that you're getting, you're able to take a step forward and hopefully not continue making the same mistakes. परफेक्ट। एक और चीज इससे बड़ी ड्राइव करती है, वो होती है कि अब हर बंदा जो है, हर बच्चे जो है वो ग्रेजुएट करते हुए, I'm pretty much sure हमारी कॉन्वर्जेशन टूवर्ड्स मोर रिलेटेड टू आवर फील्ड जाएगी, क्योंकि हम दोनों सेम फील्ड से ही हैं, क्रिएटिव के। अब होता ये है कि ये आज से 5 साल पहले तकरीबन एक बहुत बड़ा एक मिथ कह लेंगे, ये स्टार्ट हुआ कि यार चलो आओ मीडिया साइंसेस करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट लाइक डूइंग दैट थिंग। I'm pretty much sure एनसीए तो फिर भी शायद इट्स आर्ट स्कूल, आईवीएस एस एन आर्ट स्कूल, तो वो तो पहले बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर चुके हैं। देन स्टार्टेड ऑफ अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज स्टार्टेड लाइक showing that interest, और फिर मीडिया स्टडीज उन्होंने लॉन्च करना शुरू करी। सो आई wanted to know, what do you think, एक एक क्या कहते हैं उसे, एक सॉरी, आई रीफ्रेज इट अगेन। Yeah. ओके, सो यू जस्ट टेल अस अबाउट द ग्रोथ थिंग, एंड ग्रोथ से फिर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हम दोनों बिल्कुल सेम फील्ड से रिलेट करते हैं। तो आज से 5 साल पहले काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने स्टार्ट करा कि चलो यार मीडिया स्टडीज की एजुकेशन देना शुरू करते हैं। उससे पहले वी डू हैव स्कूल्स, लाइक वी हैव आईवीएस इन कराची, वी हैव एनसीए इन लाहौर, जो कि आर्ट्स स्कूल होते हैं। मुझे आपसे इस चीज को मैं जानना चाहूंगा, यू आर एन आर्ट्स स्कूल ग्रेजुएट and you are being in the field for like many years now. Do you think there is a difference between an art school and a university who is just providing a degree in some sort of like a media related thing? What's your thought on it? So, see, the one of the interesting things about being in an art school, particularly, is that it's a whole other mindset and a whole other thought process that is literally being embedded in your very early years of your personality. And when it comes to a university, and there are pros to both aspects of the schools and the universities, but there's a very clear, distinct, you can say a bit of a disconnect would perhaps be a wrong word, but it's a completely different, two kind of completely different, you can say, like mindsets of students that are being developed by the end of the years that when they graduate. So when it comes to an art school, they tend to be a little less commercial and realistic and practically oriented. This is just my opinion from what I've seen. However, when it comes to there's a lot more of artistic and a lot of more of abstract approach to whatever they tend to do. They have that kind of a stamp to it. And but however, that's not applicable. I mean, we can't really categorize कि अगर ये कोई art school गया है तो particularly सिर्फ उसी तरह के ही लोग होंगे. There's talent everywhere. And when it comes to the university aspect of things, the entire there
even when it comes to the professors that are teaching there, or even when it comes to the rest of the peers of the entire batch that they have, that they're interacting with, the methodologies are a lot more different. Liberal arts college have a completely different vibe, and perhaps I'm sure even in universities that you have interacted with, or even with your peers who have graduated from those different universities, be it like a liberal arts college or any other institute that we may speak of. I'm sure there's a certain difference that you can say, and both sides, I believe, have their own pros. And when all kinds of people from different backgrounds combine, that's, I believe, when the magic happens. टोटली Everybody एग्री can do their टोटली best. एग्री टोटली एग्री विद योर पॉइंट के दोनों दोनों यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स का बहुत डिफरेंट माइंडसेट होता है विद रिस्पेक्ट टू कि वो क्या पढ़ा रहे हैं एंड ऑन ग्राउंड रियलिटी इज आल्सो इज लाइक कि हम आर्ट स्कूल्स में देख रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ग्राउंडली चीज़ों पे काम किया जा सकता है फॉर एग्जांपल फिजिकल क्लासेस रादर दैन वर्बल क्लासेस और यूनिवर्सिटीज हैव डिफरेंट perspective towards it उसमें एक Bilkul. और चीज मैं बिल्कुल आपकी आपने अभी बताई कि यार पैशन बहुत जरूरी होता है हर बच्चे में ठीक है I'm pretty much sure there are I know a lot of people who are from arts school and also from different universities from media studies and I know a lot of people who done BBA and now they are doing a very good job in media studies as well. Absolutely. So अब उसमें ये जरूरी होता है कि पैशन जरूरी हो अब कहीं पे ना ये मिथ आ गई है कि यार अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मीडिया स्टडीज कर लो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इस पर थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहूंगा क्योंकि ना यूजली हमें ऐसा लगता है कि एज एन आर्ट्स स्टूडेंट और एज अ मीडिया स्टूडेंट related to journalism, related to direction, related to production, there are a lot of difficult fields related to it. लोगों ने इसको काफी आसान बना लिया है कि ठीक है यार हम मीडिया स्टडीज कर लेते हैं कुछ लोग इसको यही समझते हैं कि यार पेंटिंग ही करनी होती है कुछ लोग समझते हैं कि चलो एड भी तो बनाने बट it's a very different ball game. So how do you think एक ग्रेजुएट जो हो रहा है ठीक है उसको अगर वो ग्रेजुएट हो गया है और अपेरेंटली उसको कैरियर काउंसलिंग नहीं मिली है क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अब अगर कैरियर काउंसलिंग नहीं मिली है तो उस पर तो हम आते हैं अभी लेकिन जो बच्चे अभी परसू करना चाहते हैं इस कैरियर को रिलेटेड टू मीडिया very specifically related to media related to direction production and so on and so forth what do you think यार आपको चाहिए कि यार इन इन चीजों के बारे में आप जरूर जानें बिफोर यू गेट इन टू द फील्ड मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एज अ मीडिया ग्रेजुएट और बीइंग एज अ क्रिएटिव प्रोफेशनल मी माई सेल्फ एंड यू एज वेल हमने बहुत सारी चीजों को पहले से परसू रखा जिसको हमने एक अच्छे तरीके से ग्रेजुएशन कह लें या उसको लाइन अप करा पाथवे को बट अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव डोंट हैव द प्रिविलेज टू डू दैट और they might end up doing media sciences. So what are the pointers that you say कि यार स्टूडेंट्स जो चाह रहे हैं मीडिया को कवर करना वो इन चीजों का ख्याल रखें फिर उसके बाद अगर उनको लगता है कि दे हैव द पोटेंशियल दे हैव द पैशन टू इट तो उनको फिर कंटिन्यू करना चाहिए So I completely see your point because ये एक बहुत ज़्यादा mindset रहता है कि from the outside एक तो हमारी कुछ industry ऐसी है when you speak of the word media there's a lot of you expect it to be a lot of like जिस तरह हम कहते हैं कि a lot of celeb and stardom और वो एकदम से कुछ एक mindsets होते हैं जो उससे बिल्कुल एकदम से relate कर देते हैं. However, early, bilkul, when we're talking like preteens, just when they're deciding, what career path do they want to take, and this seems like a lot of fun. Acha, theek hai, photography meri hobby hai, so I want to opt for this, and filming meri hobby, and also this ties into things were very different back in the days when we were graduating. However, now with social media, your content creation segment, which falls under the wider umbrella of media and content creation, of काफी हद तक overlap होता है. Now it's very different. Kids are a lot more clear on the things that they want to do and what exactly they enjoy doing. However, one of the main key things is कि वो जो एक हमारा बहुत कुछ बच्चों का एक mindset होता है कि जी ये मीडिया में specifically there's going to be a lot of stardom, it's going to be like a lot of like fame attached to it and all of that. The thing is that people who are behind the camera, उनके लिए it's overall the industry requires a lot of grit and a lot of hard work. And I mean, be it the hours that we're talking about of work, or be it like it's a lot of groundwork, like you said earlier on as well. It's very practical, it's very hands-on. It's not something you will get the right education if you're opting for, say, up to bahut अच्छे
3 month courses, 1 month courses. There are master classes around this. YouTube is teaching you so much. Websites like Coursera and so on and so forth. And then, of course, there are bachelor's degrees around it. There are master program. But everything that you learn from the classroom, it needs to be applied with a lot of practical groundwork, and that is perhaps what polishes it. But it's great to see that, like, students of all ages and people of all ages enjoy it so much that it's become a big passion for them, and they are pursuing these things. I mean, I'm like, and as you spoke, मुझे थोड़ी देर पहले भी याद आ रहा था. I remember, I mean, meeting like people who have like settled professions in medicine, and like they're doctors, and they're like, yeah, but free time I like to vlog, free time this is what I like to do. So I think a lot of people have that, and it's interesting that even if you don't have that kind of an education per se, these are things that you can figure out, as a hobby. But it just depends on what line of work do you seriously want to opt into, and then stay dedicated to that and create a career out of yours for it for yourself. परफेक्ट। अब ये तो इतनी वास्ट फील्ड है कि अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो शायद ये चिट चैट की जगह आर लॉन्ग हो जाएगा, बट इससे एक और चीज बड़ी अलाइन अप होती है, वो आ जाता है ग्रोथ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यूजली व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को कोई एग्जैक्ट पाथवे नहीं पता। क्योंकि हमारी फील्ड, आई एम सेइंग हमारी इसलिए क्योंकि हम, जस्ट फॉर द ऑडियंस, हम दोनों एडवर्टाइजमेंट्स हैं और हम लोग कमर्शियल बनाते हैं, एंड वी प्रोड्यूस दोज थिंग्स। सो होता है ऐसा, ऐसा नहीं होता कि यू गेट ग्रेजुएटेड एंड द नेक्स्ट डे यू गेट अ कॉल फ्रॉम अ प्रोडक्शन हाउस दैट वी आर लुकिंग फॉर आर्ट डायरेक्टर और अ प्रोडक्शन डिजाइनर। इट्स बेसिकली द अदर वे अराउंड। सो यू नीड टू रीच आउट टू पीपल, यू नीड टू सी दैट इंडस्ट्री में कौन से डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, किन चीजों पे काम कर रहे हैं, क्या चीजें अभी ट्रेंडिंग में हैं, कौन से कमर्शियल्स हैं, कौन से प्रोडक्शन हाउसेस हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बंदे को रोल आउट करने के लिए। ठीक है, अब व्हेन यू आर फ्रॉम एन आर्ट स्कूल, यू somehow related to those fields, क्योंकि आपके या तो एक्स एक्स स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कोई ना कोई आर्ट डायरेक्शन या डायरेक्टर होते हैं कहीं पर, या वो कहीं पर असेस कर रहे होते हैं, तो यू हैव अ पाथवे ओवर देयर। यूजली आर्ट स्कूल में हम देख रहे होते हैं कि क्रॉस प्लेटफॉर्म कोलैबोरेशन ज्यादा हो रही होती हैं, कि कोशिश करते हैं कि यार अगर आर्ट डायरेक्टर चाहिए तो हम एनसीए से ले लेते हैं। या अगर कोई, फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग अ लो बजट थिंग, तो हम कहते हैं कि यार हम थीसिस स्टूडेंट को ले लेते हैं ताकि they can also learn from it and we can have a new experience into it। अब जहां पर बात आ जाती है स्पेसिफिक टू यूनिवर्सिटीज की, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटीज आपको बाकी सारी फील्ड में तो शायद एक पुश अप पॉइंट दे देती हैं कि आप ग्रेजुएट होते हो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि इसमें कोई गलत है या सही है, बट जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बीबीए की, सो यू गेट ग्रेजुएटेड, यू नो कि यार मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, उसका एक अलग स्ट्रक्चर है, वो वहां पे भी लोग करते हैं। What structure do you follow when you did graduate? And I'm pretty much sure शायद वो अभी से अलाइन ना हो या हो, लेकिन आपने किस तरीके से अपना पाथवे शुरू करा? आर यू अ स्टूडेंट जिसने बहुत पहले से चीजें प्रोड्यूस करना शुरू करी और कनेक्ट रही? आर यू अ स्टूडेंट जिसने कहा कि ठीक है यार अब मैं ग्रेजुएट हो गई, नाउ दिस इज द राइट टाइम टू एक्सप्लोर द इंडस्ट्री, और आई विल से एक्सप्लोर द प्रोडक्शन फेज ऑफ इट। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस स्टार्ट फ्रॉम, लाइक यूनिवर्सिटी के बाद हम क्या देखा इरा तारिक को ग्रो करते हुए? Right. So, interestingly, during my first year, when I started my film program at NCA, तकरीबन पहले सेमेस्टर के बाद I realized कि यार ये whatever I'm learning, NCA was very practical with all their studies as well. However, I just felt that there was, and ये liberal arts college में usually होता है कि आपका जो class schedule होता है वो बहुत ज़्यादा practical as well as theory based. But at the same time, शायद मुझे personally आदत थी, with a lot of like background in sciences and so on and so forth, that I like, being productive and keeping myself busy, or being involved in whatever I could learn. It was just like a personal passion that I had, that I had to be hands on with things in terms of what I can learn. So first semester ke baad, I just felt that there was a lot of time in my schedule that could be utilized. So I started looking up different internships and different programs. I started reaching out to people कि ओ यार ये लोग हैं जो कुछ ads बनाते हैं, या internship opening है, या आप जब student years में होते हैं ना, and this is why I highly encourage, be it any career path, जब आप student years में अपना time करके and manage कर लेते हैं,
उसमें ये होता है कि आपका लर्निंग माइंडसेट फर्क होता है. वंस यू आर अ ग्रेजुएट, in my opinion, I think it's a little too late to start from that tabak. You either, depending on your career, you've moved into a job mentality, or you've moved into, you think that you have accomplished something. अब तो हमने graduation कर ली है, तो जी अब तो हमें, like the learning mindset, of course, वो एक थोड़ा later on समझ आती है. But during your first, second year, even up to your fourth year, if you start with some internships, then you start, just learning and adding on to your experience, तो आपको later on जाके बहुत ज़्यादा benefit करता है. And student mindset तो हमेशा ही रहता है, but वो उन years में आप बड़े quickly उस तरह से, even the peers around you, if you're lucky to find great people to work with, they also, really add on to the pathway that they're creating for you. So luckily, this is getting a little too detailed, but what was interesting was that I was very, very fortunate that somehow the stars aligned, or however it worked out. I sent out a very random message to Jami. He's a famous pioneer director based in Karachi. I sent out a message to him that whenever you're filming in Lahore, I'd love to just intern free of cost. I'd love to just get the experience of working with you. And he was kind enough to reply, connect me to his team. There's another director, Saima Baji. She's somebody who, just went on and went like, we're shooting in Lahore, and just, be a part of I remember it was I'm not sure if I should take the name of the brand, but it was quite a established company. And, we shot for a commercial for them. So that was my first ever big exposure of a proper high scale top tier production. So the first benchmark, and I'm just watching, I'm like, this is a completely different world. So वो जो एक benchmark of production set हुआ वो हुआ. Then later on I met some amazing people. There's big films. Nasir Bhai, again, currently he's in the UAE creating commercials for the international market, and so on and so forth. So, got some great people and great mentors to learn from. And just during those student years, वो कुछ base ऐसे बनी कि network expand होता गया, and then it just grew from there on. I really appreciate that you just mentioned your story, क्योंकि इससे एक चीज बहुत लाइन अप हो जाती है, जो मेरे दूसरा बड़ा मेन हमारा पॉइंट होगा जिस पर हम अभी बात करते हैं, वो था हाउ टू अप्रोच. ये बड़ा सिंपल और बड़ा डिफिकल्ट है कि लोगों को लगता है कि यार हमने, चलो इसको थोड़ा सा ड्राइव करते हैं टूवर्ड्स द ग्रोथ पार्ट. लोगों को लगता है हमने लिंक्डइन बना ली या हमने पोर्टफोलियो बना लिया. अब एक दिन हम सो के उठेंगे और कल को हमारे पास सारे डायरेक्टर्स के फोन आएंगे या सारे प्रोड्यूसर्स के फोन आएंगे. बट देयर शुड बी अ राइट वे टू डू इट. एज यू मेंशन के यू डायरेक्टली मैसेज जामी भाई, और maybe you can message to any of the production house. You should have to take the first step. अब मैं फर्स्ट Absolutely. स्टेप को कनेक्ट करता हूँ टूवर्ड्स ग्रोथ. अगर देखा जाए तो लिंक्डइन इज ऑल्सो अ वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म. ठीक है. Absolutely. अब उसमें क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि यार अगर हमने प्रोफाइल बना ली है और हमने अपना थोड़ा सा काम डाल दिया है, या हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोफाइल हमने कवर लगा दिया, प्रोफाइल पिक्चर लगा दिए, व्हाट्स द नेक्स्ट. आई वुड वांट टू नो कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी फील्ड में. बहुत जरूरी, मैं उसको हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे स्किल सेट आते हैं वहां पे आपके लिए शायद आपके कंटेंट स्ट्रेटेजी, आपकी एंगेजमेंट, आपकी प्रोफाइल से ज्यादा बेहतर होता है हाउ प्रोफेशनल यू आर and how much you are into the field, how you're passionate about it. So, do you think this is the right approach when you are on LinkedIn or any other platform? You should also try to ace any opportunities you can. Try to reach out to people, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ना लोगों के दिमाग में माइंडसेट है कि यार इंडस्ट्री के लोग जो है ना, इनके अंदर बहुत ईगो है, या ये रिप्लाई नहीं करते. With respect to क्या obvious सी बात है, we usually have like productions going on, we have like commercials going on, और उसको अंदर कोप अप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. And I'm pretty much sure कि अब आपको, अब तो माशाल्लाह से आप जिस जिस पोजीशन, you will get a lot of messages के here I if you are doing something I want to be a part of it, and it's a vice versa thing. So what do you think यार, जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, ठीक है, अब वो ग्रेजुएट हो गए, उन्होंने चलो ये भी करना शुरू करा, तो आई थिंक व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, हाउ टू अप्रोच टू पीपल, how to get connected, and what's the importance of connection building, or I'll say your PR, that can makes a difference in your career growth. Interesting question, and I think it's so important to actually talk about this. एक तो ये कि LinkedIn is now a great platform where professionally people can connect,
And सबसे पहले तो step one would be setting up your own profile, ensuring that and keeping up with the fact that this this is not Facebook or Instagram. This is a professional platform, having the right kind of bio. These are very minor things, but I like to always talk about digital profiles as your digital presence. That's the first impact that people get when they land on your profile. Be it could be across all platforms, but let's just focus on LinkedIn as of now. So having the right kind of display picture, the right kind of bio, the right kind of information, and updated information. Then apart from that, and it falls into actually just a bit of a strategic approach to it, is that how regularly you post content. And it could be anything. It doesn't have to be content that you produce. It can be, some beneficial thing that you read, something that you thought was aligns with either something that you've learned, something that you aspire to be, or anything of that sort. But you need to repurpose content and start sharing that. And the other leg is that you start producing content yourself if that is something that aligns with something that you want to do. So you keep your profile active, and then also you start engaging. You specify a specific time, be it like a 20-minute window. Doesn't have to be every day. It's always good to have it like every alternate day, every 2 days. But you set aside that time and you see what the LinkedIn trends are, who are the mentors or industry leaders that you want to keep track of. You are open to like reading their conversations, learning from them, and then also being a part of that conversation, dropping in a comment, having activity across on their profiles. And that is where the visibility, to a certain degree, to some sort of a tier, it starts building. So the earlier you start doing this, the better grounding you will have for your own profile, and the quicker you will get comfortable with the tone of that platform, which is LinkedIn. So that's one thing. Apart from that, the second pointer is how to approach in terms of somebody that you want to work with, or somebody that you want to connect with for maybe something you want to work on later down the road. Personalize the message. Make it sound like how the tone of the message really makes a difference. And ultimately, do not try to make it sound like Chat GPT. That's one. It's not a bad idea to just type in a prompt, get the message, but customize it. That is very important, because one thing that we cannot forget in this digital day and age is that none of us are robots. We all have to keep everything humanized, and that's the core of everything that we produce, right? So you have to personalize the message and make it sound like yourself, and just overall the inclination towards either you want to have an opportunity to work with somebody, maybe you want guidance on something. There are a lot of people, and majority of the people that I speak to, they definitely respond. Yes, they do it at their own time, but they tend to get back to anybody that needs guidance or help, or everybody's looking for great people to work with. परफेक्ट। So तो that helps. अभी हम इससे ये समझे कि हर कोई रिप्लाई करेगा, बट यू शुड हैव टू बी अ राइट टोनालिटी, राइट तरीका होना चाहिए हर चीज का। और ऑप्टिमाइजेशन है आती है उसके अंदर कि आप क्या चीजें इंट्रोड्यूस करो। इट्स लाइक अ आई सी लिंक्डइन एज योर विजिटिंग कार्ड और योर पैम्फलेट, जिसमें लोग आपके बारे में जान सकते हैं। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट नाउ इन 2024, अगर मैं कहता हूँ कि लिंक्डइन आपकी रेज्यूमे है तो है। और वो उसकी वजह इसलिए क्योंकि मे बी एक रेज्यूमे आपके काम के बारे में बता सकती है, बट समटाइम्स हमारी फील्ड में ट्रस्ट इज द बिगेस्ट थिंग, rather than your degree, rather than your work, क्योंकि हम वी आर वर्किंग फॉर $1 million कैंपेन, वी आर वर्किंग फॉर $1 million के बजट्स में काम हो रहा होता है। देयर आर लॉट ऑफ मनी इंक्लूड इन इट। अब उसमें होता ये है कि हमें ट्रस्ट फैक्टर चाहिए होता है कि यार अगर हम किसी बंदे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, वेदर इट्स इन आर डायरेक्शन, वेयर देयर इज प्रोडक्शन, ऑन ग्राउंड प्रोडक्शन, और एनीथिंग लाइक, वेदर इट्स लाइक वार्डरोब और एनीथिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये सारी चीजें रेजोनेट करती हैं कि यार आपकी जो प्रोफाइल है उसके अंदर वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। आप एंगेज करते हो तो लोग उससे ज्यादा एंगेज होंगे, और एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है। उससे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट निकलती है, जो कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ आजकल लोगों ने छोड़ दी है, जो कि ग्रेजुएट्स को ना बताया जा रहा है ना लोग उस पर काम कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो योर पर्सनल ब्रांडिंग, हाउ यू पोर्ट्रे योर सेल्फ टू द मार्केट।
होता यह है कि मैं आई एम बीइंग इन कॉन्वर्सेशन विद अ लॉट ऑफ पीपल हु हैज अ रियल पोटेंशियल बट दे डोंट नो हाउ टू showcase to the audience. And to be very honest, if you have a bag full of talent, a bag full of portfolios, a bag full of DVCs, commercials, VFX, CGI, anything. But if you can't if you can't show to the audience, I might say कि वो एक सही approach नहीं होगी. So what do you think about personal branding as far as a media graduate who उसका तो जिसका तो काम ही क्रिएटिव बनाना है. ये तो वो वाली बात हो गई कि आई ओपन अ शॉप ऑफ क्लोथ्स बट आई से कि यार मेरे पास कपड़े हैं, आप मुझ पर ट्रस्ट करें और मैं आपको कपड़े अच्छे बना दूंगा, बट अभी दुकान में मेरे पास कुछ नहीं है. बिल्कुल। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग? सो सबसे पहले तो लाइक यू जस्ट मेंशन दैट टैलेंट बहुत ज़्यादा है बट उन्हें एग्जैक्टली प्रोजेक्ट करना या शोकेस करना इन अ वे नहीं समझ लगती या दे डोंट नो द राइट डायरेक्शन. सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है कि व्हाट अलाइंस विद योर सेल्फ, व्हाट आर योर की, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन या ओवरऑल उसके अंदर भी देयर सर्टेन की फीचर्स की पैशंस आप कह लें जो आपके अलाइनमेंट के साथ ठीक होते हैं. सो उसके लिए आप सबसे पहले तो यू नीड टू रियली सिट डाउन एंड सी ओके व्हाट आर द काइंड ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग लोगों की जो आपको अपील करती है एज अ स्टार्ट. इट्स ऑलवेज गुड, ये हम डिफरेंट क्लाइंट्स को भी ब्रांड्स को भी कहते हैं कि जी आपके एस्पिरेशनल कंपेटिटर ब्रांड्स छोड़े छोड़े आपके एस्पिरेशनल ब्रांड्स कौन से हैं, ताकि हमें थोड़ा सा माइंडसेट समझ लगता है कि व्हाट द इंडिविजुअल और द कंपनी वांट्स टू बी लाइक, राइट. सो जब वो थोड़ी सी इस तरह की रिसर्च करते हैं तो उसके बाद उन्हें आइडिया होना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना एक पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करना शुरू करते हैं कि ओ these are the kind of topics that I enjoy, or these are the kind of leadership style that I enjoy, or these are the kind of colors that I enjoy. However, जो भी आप अपने कंटेंट के अंदर क्रिएट कर रहे हैं. सो पर्सनल ब्रांडिंग की जहाँ तक बात है उसके अंदर हम स्टार्ट में तो ऑफ कोर्स स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जरूरी सिर्फ ये चीज है कि जो भी आप प्रोजेक्ट करें ना वो थोड़ा बहुत टू एटलीस्ट 70-80% ऑफ द डिग्री, एंड इट कैन वेरी एंड चेंज ओवर टाइम. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट एक चीज अगर आपने स्टार्ट कर ली है तो आप उससे बिल्कुल भी डेविएट नहीं कर सकते हैं. इट्स गोइंग टू बी जर्नी ऑफ ग्रोथ फॉर हुएवर दैट इज स्टार्टिंग. बट एक आप कह लें कि एक स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन या साउंड ऑफ योर प्रोफाइल होनी चाहिए और वो आपकी होनी चाहिए. सो अक्सर वो हम देखते हैं कि a lot of successful LinkedIn profiles, you look at their post or you look at those words or even an emoji, they are that particular about it that even an emoji that they use, it would be somehow resonating with their own name, personal brand or business. इतने ग्रैनुलर होके आपने वो एक रिकग्निशन क्रिएट करनी होती है. सो ऑफ कोर्स एंड यू डोंट नीड टू गेट दैट ग्रैनुलर अबाउट इट फ्रॉम गेट गो, but at least some sort of either be it like colors, fonts, or again like I said the topics that you're speaking about. तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, एंड इट ऑल डिफाइंस टू प्रोफेशनलिज्म. भी मैं कहती हूँ एक बहुत वास्ट वर्ड है, बहुत सारे सिमिलर पॉइंट्स हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू जस्ट बी authentic to your true self. That's very परफेक्ट. important. अब एक तो दो हमने जंगें सीख ली. हमने ये सीख लिया कि ग्रोथ क्या होती है, हमने ये सीख लिया कि आपने स्टार्ट कैसे करना है. आप पर्सनल ग्रोथ भी कर लेती है. अब आ जाती है वो सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है क्रिएटिव प्रोफेशनल के लिए शायद जीने मरने वाला हिसाब होता है. दैट इज पोर्टफोलियो. आई हैव केम अक्रॉस विथ, if I say horrible, won't be a right word. People usually don't give like a 2% importance of how to manage the portfolio. I'm pretty much sure as far जितना मैं समझता हूँ हमारी फील्ड ऐसी है कि we are doing consecutively a lot of different things, different projects, एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट, और apparently everyone wants to see our life. We are roaming around with celebrities और सबको लगता है कि क्या लाइफ है. बट उसकी सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज जो होती है हर चीज सेट करने के बाद, हर चीज को सही रखने के बाद, वो आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. Because what I personally see, people either in universities
or outside universities don't know the right platform. For example, if I get a poll on LinkedIn, और अगर मैं उसमें भी सिर्फ लोगों से पूछूं कि what is the right platform to show your video production thing, so there are people who are still using Google Drive, just putting all their things and sharing it with the industry professionals. We do have platforms like Vimeo, we have platforms like different other platforms. Sometimes ओके ठीक है, ये अच्छी बात है कि यार आप पे यूट्यूब पे अगर क्लाइंट का डला हुआ है तो फिर तो ऑथेंटिकेशन ही डबल हो जाती है। बट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मैं इसलिए आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि यू स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट थिंग एज एन आर्ट डायरेक्टर एंड देन यू गो टूवर्ड्स प्रोडक्शन, यू हैव डन डायरेक्शन, यू हैव डन नाउ माशाल्लाह यू आर प्रोड्यूसिंग योर ओन कमर्शियल्स एंड डिफरेंट थिंग्स फॉर द क्लाइंट्स एज वेल। डू यू थिंक कि अगर मैं सोशल बाइट की बात करूं और वहां पे जब पोर्टफोलियो आता है, तो हेरा के लिए या किसी भी इंसान के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है पोर्टफोलियो के लिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि स्टूडेंट समझ सकें। मुझे भी ऐसा लगता है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल कम अक्रॉस टू मी एंड से दैट कि हमारे पास उतना काम नहीं है, हमने इतने कमर्शियल में काम नहीं करा तो हम क्या दिखाएं। और मुझे ये भी चीज़ एक गलत लगती है कि अगर आपने कमर्शियल में जो काम करा है उसको हाईलाइट करें rather देन, क्योंकि एक कमर्शियल इज अ वेरी बिग टीम एफर्ट। आप उसमें अगर फॉर एग्जांपल यू वर द सेकंड एडी, तो मैं तो कहता हूँ उसको प्राउडली कैरी करें, क्योंकि बीइंग अ सेकंड एडी उसकी भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। हर बंदा अपनी जगह पे बिल्कुल सही लगता है, तो वो बिल्कुल जाके प्रोडक्शन जो है उस तरीके से चल रही होती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस आप डिटेल में बता दें, ताकि हर बच्चे को, हर बड़े को, हर ग्रेजुएट को पता चल जाए एक मरतबा। सो पोर्टफोलियो इसमें मल्टीपल पॉइंट्स हैं। आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पहले भी पूछा है, प्रॉब्लम आई मिस दैट। इसके देखिए, सबसे पहले तो एक छोटी सी चीज वो एड्रेस कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी स्मॉल लिविंग प्रूफ ऑफ हाउ यू कैन स्टार्ट गेटिंग वर्क इवन इफ यू डोंट हैव अ पोर्टफोलियो। सो इनिशियली आपके पास क्लाइंट्स का, अगर यू डोंट हैव legit clients that you worked with or worked for, you can always just start creating work as if कि आपने किसी क्लाइंट के लिए किया है। ठीक है, यू कैन जस्ट क्रिएट these either in the design segment, you can start creating those designs. You need to put in that time. जो initiation है ना, थोड़ी सी, के portfolio नहीं है, कोई कोई only if somebody hires us only then we will work, you know। ये भी थोड़ा सा एक अर्ली एज पे माइंडसेट शिफ्ट थोड़ा सा चाहिए होता है कि फ्री टाइम है, बैठे, डू इट फॉर योर सेल्फ एंड देन शो दैट एज योर केपेबिलिटी और योर टैलेंट लेवल। ठीक है। पैशन प्रोजेक्ट्स। सोशल, यस। ओके। शुरू में social byte did not have any client. They, of course, when it started, it's not like a client came and we said, you know, it's going to, oh, we're an agency now. It was like, you can say, a work of dummy work, dummy designs, and we said ये हमारी potential है, are you interested in working with us? तो हमारा initial portfolio वो था, and then उसके बाद clients started coming in and we started working with them, and you know, it slowly and gradually is still growing from there on. सो ये तो हो गई अगर हम डिज़ाइन और स्पेसिफिक इस तरह की चीज़ की बात करते हैं। और कहाँ पे ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, इट डिपेंड्स। गूगल ड्राइव में 100% नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा पोर्टफोलियो आपने इस तरह से लेने के, इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर द पर्सन हु इज व्यूइंग दैट योर वर्क। So there are sites like Behance, there are sites like Vimeo, YouTube पे अगर आपकी एक properly playlist बनी हुई है तो in my opinion वो भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, as long as there is one go-to site which has all your information। जब आपके पास 3 से 4 से 5 प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, उसको हम कहते हैं एक शो रील। ये स्पेसिफिकली वीडियो के लिए, आई एम श्योर यू फेमिलियर विद इट, जो कि इट नीड्स टू बी अ मैक्सिमम ऑफ अ मिनट, and unless it's like a year long reel and you have it edited with the right sound effects and it has different clippings, your best shots, your best clippings, your best projects which are being projected। अब वो उसके अंदर किसी भी तरह की चीजें हो सकती हैं, डीवीसी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, जो भी आपका मेन फोटे है, आप उसके अंदर से करके एक शो रील क्रिएट करते हैं and that can be projected। Apart from that, जो एक थोड़ी देर पहले भी आपने बात की थी कि people have the work but they don't know how to showcase it, you know, वही वाली बात कि बन जाएगा मगर कुछ दिखाने के लिए उस तरह से नहीं है। अगर तो प्रोजेक्ट्स हैं उनको शेयर करें ताकि वो एग्जिस्ट करते हो। एंड समटाइम्स इट्स नॉट अ बैड आइडिया, जिन लोगों के पास
शायद कोई हो जिनके पास हो बट दे हैवंट स्टार्टेड देयर लिंक्डइन जर्नी येट और देयर प्रोफाइल पर्सनल ब्रांडिंग। एक दिन बैठे एक दिन सारे अपलोड कर दें या हफ्ते में लगा के आपके पास ताकि वो सारे शो हो रहे होंगे। एंड अगेन सिलेक्ट दैट वन प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप रेगुलरली फ्रॉम टाइम टू टाइम वो अपलोड होते जाएंगे। और अगर आप इतने लाइक एक्टिवली उस तरह से है तो आप उससे शो रील क्रिएट करें। और एक बड़ा ट्रेंड होता है हमारी इंडस्ट्री में ईयर एंड शो रील कि इस साल में ये प्रोजेक्ट्स हुए थे। और आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्ड करते जाएं एंड वो हो जाता है। नोबडी स्टार्ट्स फ्रॉम से 40-50 प्रोजेक्ट्स अंडर देयर बेल्ट। आहिस्ता आहिस्ता इट्स अ स्लो ट्रांजिशन और वो हो जाता है। परफेक्ट। तो अब हमने प्रोजेक्ट, मतलब बेसिकली पोर्टफोलियो को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप हमेशा जो है यू स्टार्ट वर्किंग फॉर ट्रिपल ए टाइटल्स, आप हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं। गुड इनफ, ये काफी इंफॉर्मेटिव था। आई एम प्रीटी मच श्योर लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट हैव दी शो रील, और अगर जिनके पास होगी वो शायद उसको और बेहतर कर सकते हैं। दैट कम्स टू अनदर पार्ट ऑफ how you are doing right now your LinkedIn, or I'll say your engagement thing। क्योंकि अब जब पोर्टफोलियो भी आ गया है और फिर काम भी आ गया, फिर आ जाता है उसका तरीका उसको अवाम को दिखाने का, लाइक हाउ यू वांट टू एंगेज इट। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग अ वेरी क्रिएटिव थिंग, लाइक मी एज माई पर्सनली, अगर मैं किसी भी चीज का VFX ब्रेक डाउन करता हूँ तो बैकग्राउंड स्टोरी बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि LinkedIn इज नॉट अबाउट अ प्लेटफॉर्म दैट इज ओनली फॉर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, क्योंकि बहुत मर्तबा हम जिनसे डील अप कर रहे होते हैं या हम जिनसे क्लाइंट्स से बात कर रहे होते हैं या हम जिन जिन जो भी HR से बात कर रहे होते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, HR यूजली डोंट हैव दोस बिग थिंग्स, वर्ड्स नहीं पता उनको, ही नहीं पता डायरेक्शन क्या है, क्योंकि वो सेम फील्ड नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है अपने काम को दिखाने का भी तरीका होता है। शोरील में भी आप अगर दिखा रहे हैं तो उसमें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम अगर एक एक टीवीसी बना के टीवीसी को डाल रहे हैं तो शायद लोग उससे रेजोनेट करेंगे। हाँ ठीक है, उससे आपका काम रेजोनेट होगा, लेकिन व्हाट अबाउट द प्री प्रोडक्शन फेज? आपने महीनों की मेहनत करी है, यू आर लाइक डूइंग प्री प्रोडक्शन, रैक कीज एंड एवरीथिंग। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि स्टोरी भी बनाए और आपने अपनी ऑडियंस को अप टू डेट रखना बहुत जरूरी है। कि भाई अगर मैंने 3 महीने से कुछ नहीं डाला और 3 महीने कुछ डाल रहा हूँ, दैट वर्क शोकेस योर के 3 महीने से ये बंदा ये काम कर रहा है। So, what sort of engagement plan that you are using right now? Are you something के जो कि कहते हैं यार कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हो? आर यू समथिंग कि यार ठीक है, हम प्रोजेक्ट को पहले कंप्लीट करेंगे, प्रोजेक्ट को सीरियसली कंप्लीट करके उसको फिर देखेंगे यार हम ऑडियंस को क्या बताएं, अपने चैलेंजेस कैसे बताएं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग, देयर आर लॉट ऑफ टाइम, अब तो बहुत ज्यादा हो गया कि क्रिएटिव प्रोफेशनल जो नहीं भी हैं वो BTS देख सकते हैं। पहले तो आई एम नॉट श्योर कि लोगों को इतना पता भी था कि यार BTS है क्या। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट प्लान और ऑप्टिमाइजेशन प्लान और आई से सोशल मीडिया प्लान क्या चलता है आपका? कि यार सोशल बाइट जब भी चीजें कंप्लीट करता है तो क्या इट्स गोइंग थ्रू अ पाइपलाइन कि ठीक है यार हम उसके पीछे एक पूरा कंटेंट लिखेंगे ताकि लोगों को उसकी जर्नी का भी पता चले? क्योंकि पोर्टफोलियो तो बंदा तब देखेगा जब वो स्पेसिफिकली कोई चीज देख रहा होगा, बट व्हाट अबाउट द अदर पीपल जिनको जिनसे एंगेज करना है? सो व्हाट्स योर एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी? Right. So I think over here, what I'll talk about is generally the ideal content strategy that should exist. Because currently social bite के ऊपर जो हम strategy apply करते हैं वो fairly बहुत simpler होती है। तो simpler इस तरह से होती है कि इस वक्त at this point of our business we're too focused on our deliveries, on keeping our clients happy and ensuring that their work is streamlined। तो कहीं ना कहीं हमारी social bite की strategy simplified रहती है that after a successful project delivery we just have the final outcome that is being projected on socials। So right now हमारी dynamics और perspective थोड़ा सा इस तरह से है when it comes to the content strategy and that is consistent। One thing in both cases would be consistency के गायब नहीं हो जाना social media से, और अगर होना भी है तो फौरन जिसको कहते हैं दस्ती कम बैक मारना है, बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं गायब रहना। सो एक तो ये चीज है। तो हमारी सोशल बाइट पे फेयरली सिंपल है। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ या सम सॉर्ट ऑफ अपडेट्स, दे गो लाइव कंसिस्टेंटली अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। जो हम बाकी बात करते हैं in terms of my suggestion would be and this is something that I like to apply is कि सबसे पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले unless that's something that you think you're up for। आप
प्रोसेस ऑफ द जर्नी रिकॉर्ड करते रहें, बीटीएस उसकी रिकॉर्ड्स करते रहें, नोट्स आइडिएशन साथ साथ चलती रहे, एंड एक ही दफा इन योर कंटेंट कैलेंडर उसको इनकॉर्पोरेट करें, एंड वंस द प्रोजेक्ट हैज सक्सेसफुली गॉन लाइव, 2 days after you can start with the entire release of the project. पहले BTS उसका process, उसके अंदर team pictures, be it the concept behind the work, the challenges that were faced. There are multiple angles. और उसके अंदर कोई set in, the best thing about social media is that there's nothing set in stone. You just have to experiment with it, and of course see what the best trends are, how are the best people doing it, and then there's a lot of learnings that you can pick up from them, customize them according to whatever resonates with you, and run with it. Perfect. Sorry about that. आई रियली लाइक द आइडिया जो श्रेयस आपने बताया कि बेसिकली क्योंकि सबको लगता है कि बहुत मुश्किल है लिंक्डइन पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबिलिटी रखने का। इट्स जस्ट दैट कि हर बंदे की अलग स्ट्रैटेजी, आप उसको फॉलो करें, बस अपने बारे में बताते रहें आप क्या कर रहे हैं, ताकि एट सर्टेन टाइम जब आप ये रेगुलरली करेंगे तो शायद 3 साल बाद वो आपके पास इतना कुछ हो जाता है कि लोगों को पता होता है ठीक है यार, दो आर द थिंग। अच्छा, अब मैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में भी चल रहा था वो मैं भूल गया था, लेकिन अब मुझे दोबारा याद आ गया है। वो आ जाता है फाइनेंस मैनेजमेंट। क्योंकि हमारी फील्ड में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूं रिलेटेड टू आर्ट डायरेक्टर्स, एसोसिएट्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, just for the audience, it's like a 3 month trimester kind of a thing. We get paid after 3 months of every project. हाउ डू यू थिंक यार फाइनेंस, क्योंकि देखिए हर बंदे को अपने फाइनेंस भी देखना है कि ठीक है यार, इफ आई एम डूइंग दीज प्रोजेक्ट्स इन कंसेक्यूटिवली, फिर मेरे पास ये गैप आएगा, तो उस गैप में क्या करना चाहिए, नंबर वन। नंबर सेकंड, हाउ यू आर हाउ यू आर लाइक, इज इट द राइट टाइम के पूछूं, या मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। जब आप इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो क्या आपको पैशन प्रोजेक्ट छोड़ देने चाहिए? क्या आपको अपने काम को प्रोड्यूस करना छोड़ देना चाहिए? मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि मैंने सवाल थोड़े मिक्स कर दिए। Sure. द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वांट टू डिस्कस हिरा इज फाइनेंस मैनेजमेंट। क्योंकि जस्ट फॉर द ऑडियंस इट्स लाइक कि हमारा टर्नओवर जो होता है वो हर 3 महीने बाद की पेमेंट साइकिल होती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये होता है कि वो कंसेक्यूटिवली ऐसा नहीं होता। लोगों को ये लगता है कि मीडिया साइंसेज में ऐसा है कि बस पहली तारीख से लेकर 30 तारीख तक एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट है, सो देर इज लाइक अ पैच ऑफ इट, वी हैव अ लाइक स्पेल फॉर 7 days और 15 days, देन वी हैव अ गैप। और दूसरा सवाल है कि उस गैप में क्या हमें अपने पैशन प्रोजेक्ट्स को रखने चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये फील्ड सम सॉर्ट फ्रीलांस ही रहती है। क्योंकि यू आर ऑन बोर्डेड ऑन समवेयर एंड देन यू कैन ऑल्सो वर्क इन ऑन क्रॉस प्लेटफॉर्म्स। तो व्हाट डू यू थिंक कि पैशन प्रोजेक्ट्स को काम करने के साथ साथ छोड़ देना चाहिए, या यू शुड ऑल्सो एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है प्रोफेशनली दे आर आर्ट डायरेक्टर्स बट दे राइट, बहुत सारे लोगों को देखा है दे आर डायरेक्टर्स बट दे ऑल्सो डू फोटोग्राफी एंड डिफरेंट स्किल सेट एज वेल। सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑन बोथ दीज थिंग्स, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड द सेकंड, बीच में जब गैप आता है तो क्या करना चाहिए, छुट्टियां ले लेनी चाहिए या काम करना चाहिए? देखिए अगेन इसके अंदर आइडियल केस सिनेरियो तो वही है कि यू परस्यू योर ओन पैशन प्रोजेक्ट्स, और वो आप उनके ऊपर डेफिनेटली यू कंटिन्यू वर्किंग ऑन देम इफ यू आर इंस्पायर्ड इनफ टू वर्क ऑन देम, बिकॉज जो बहुत ज्यादा लंबे गैप्स आ जाते हैं वो थोड़ा सा इंसान को रस्टी भी कर देते हैं, ठीक है। तो just to ensure that you are experimenting and always learning from anything that you want to try out, तो बहुत ज़रूरी है कि उन गैप्स के अंदर भी the work, you continue producing work, be it with whatever your passion project is. A lot of people are working on different web series, like you said, they're writing and they're executing that slowly and gradually, but they're still at it. बिकॉज पैशन प्रोजेक्ट्स की एक मेन चीज होती है वो सेल्फ फंडेड होते हैं, आप या खुद ही सब कुछ कर रहे होते हैं, या देयर इज नो स्पॉन्सर टू इट, और देयर इज नो you're not being hired to do that in a way. But and that's in a way, there are two sides of the coin to it. That's the beauty of it कि आप खुद ही उसके ऊपर काम कर रहे हैं, but then at the same time that means that there's zero accountability, आप खुद ही अपने लिए खुद ही accountable हैं। तो but उसकी from time to time if you start something, it's important to also finish it off,
ये एक चैलेंज होता है जो हम बहुत ज़्यादा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, लॉट ऑफ क्रिएटिव स्पेसेस, कि वो स्टार्ट करते हैं बट वो फिनिश लाइन तक लेके नहीं जा पाते, बिकॉज एक एक either you're questioning yourself in terms of what you're doing, or just overall, I'm sure a lot of creatives can relate to it. And I don't have to explain it further, but still at the same time, zaruri hai कि we continue with that push and just wrap it up to whatever degree, just let's not leave it half cooked. तो एक तो ये चीज़ है, एंड जो बाकी हमारे पेमेंट साइकिल्स की बात है, वो हम लोग का फील्ड ही कुछ ऐसा है कि इट्स इट्स गोइंग टू बी इन बैचेस, but when you compare it, and if I may speak about it, when you compare the finances of this industry and any other uh, career pathway that we speak of, तो somehow I've always believed that this particular, although वो इसका एक word use होता है हवाई रोजी है, कि आया तो पता नहीं कहाँ से आया, but आ गया and then उसके बाद दोबारा भी आ जाएगा, तो that's how, और at least television commercials की एक फील्ड जो होती है उसमें consistency guaranteed नहीं है बिल्कुल भी, बट जब वो काम आता है तो इट इज फेयरली compared to other fields, even at an early age, it is fairly heavily financed. That's something that I like to say. कि जब आप बाकी फील्ड्स में जिस तरह का वो रिग्रेस महीने का काम होता है और उसके बाद जो आपको एक पेचेक मिलता है, और इसमें जो एक omitting the pre-production of it, but like जो 15 डे या 10 डे और उस तरह का जो आपका रिग्रेस काम होता है, उसके अंदर जो आपका होता है, तो वो आपकी एक बड़ा डिफरेंस एक चीज होती है। तो उसके अंदर सिर्फ ये है कि कंसिस्टेंसी रहती है, बट एट द सेम टाइम ज़रूरी है कि अगर ऑल भी आप अपने एवेन्यू स्टार्ट कर लें, बिकॉज कंसिस्टेंसी तो रहेगी, बट ड्यूरिंग दोज गैप्स आइदर यू हैव योर पैशन प्रोजेक्ट्स और अदर थिंग्स दैट यू आर डूइंग, so that's always an added on. And in today's day and age, you need to have like multiple, things that you're doing and juggling, while you have the energy to do so. परफेक्ट, थैंक यू सो मच हेरा। आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो कि रिसेंट ग्रेजुएट होने वाले हैं। ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ ग्रेजुएट पीपल जो कि जिनको समझ में नहीं आता कि पाथवे स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है क्लास के अंदर 40 लोग हैं, अब 40 लोग डायरेक्टर बन जाएंगे तो बाकी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन बनेगा, एंड वाइस वर्सा। बट आई एम प्रीटी मच श्योर, थैंक यू सो मच हेरा फॉर योर टाइम एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड होपफुली हमारी ऑडियंस अच्छी खासी चीज़ें से सीखी होंगी। थैंक यू सो Thank you so मच। much. Thank you.